ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸುದ್ದಿಗಳು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಂಕರ್. ವಿಮಾನೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ವೇಫರ್ ಸ್ಕೈ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2025 ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ಚಾಲಕರಾಗುವ ಕನಸು ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ವೇಫರ್ ಸ್ಕೈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಪಾಥ್ವೇ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಬಂದಿದೆ. ವೇಫರ್ ಸ್ಕೈ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೈಲಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಪಿಎಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ, ಡಿಜಿಸಿಎ ಮೆಡಿಕಲ್, ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವೀಸಾ, ಸಾಲ, ಟಿಕೆಟ್, ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಹಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕು. ಪೋಷಕರು, ತರಬೇತುದಾರರ ಸಭೆ, ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಬರೆಹಾತ್ಮಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ. ತರಬೇತಿ ನಂತರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಷನ್, ಟೈಪ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ವೇಫರ್ ಸ್ಕೈ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಜ್ ಉದ್ದೀನ್ ಲಾಲಾ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿ ಸುಲಭ, ಭದ್ರ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡುವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏವಿಯೇಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕ ತರಬೇತಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ವೇಫರ್ ಸ್ಕೈ ಲಾಂಚ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಪೈಲಟ್ ಕನಸು ಕಾಣುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅವಕಾಶ ದೊರಕುತ್ತದೆ. Very good evening, Assalamu alaikum and Namaste. So we are here today on the behalf of ವೇಫರ್ Sky. Okay, so what we are exactly doing, let me introduce myself first. I am Nazuddin Lala, the founder and the director of the company ವೇಫರ್ Sky. So today we were having this seminar. So like many students have joined us, like explore the opportunity what we are providing there, and also we are having the launch of the like exclusivity rights which we have taken from the like Aqualit Flying Wings, the academy which located in South Africa. So students can enroll from the India to the South Africa Academy now. So apart from that, we are also launching today a student portal where the student will like have the entire journey on the portal, like A to Z solution, whatever they require, like regarding the visa, regarding the seat blocking, regarding the classes, regarding the entire training part of their CPL. So we are here to announce that we are opening the admissions for the entire India now. So we like to know like student can contact us and we like to entertain and give the admission. See, we are only into the CPL course where the student wanted to become a pilot. We are completely helping, supporting them end to end. So we are only into the CPL course, not into the any other aviation courses like air hostess and all. So we are only special here. Duration of the course. So this is something very good things are asked. So duration is like in other countries, even in India, it is crossing around 2 years, 3 years. So we are bringing in just 12 months. The student can like complete the entire course, so he can become a ready-to-fly airline pilot. Hi, Assalamu alaikum, Namaste, welcome Bangalore. My name is Sajida. I'm from Aqualit Flying Wings in South Africa. I represent the training institute in South Africa that offers the pilot training. You said you represent the Sky in South Africa. Now, how do you feel the city is and how safe it is for the Indians? South Africa? Yeah. South Africa in itself is like any country. You have your good and you have your bad.
Where we are situated is relatively a safe area. When students come to South Africa, we obviously inform them of areas they shouldn't go to, a little bit safety rules and regulations. Um, South Africa has been portrayed as a crime, and safety is not relevant. And if you go outside on the streets, you can't walk. There is little regulations that you need to keep when it comes to safety, but other than that, it's perfectly fine. It's like any other country. Please explain as one advantage of joining the Wave for Sky. So Way for Sky is our partners in India. They are here to provide with you assistance. We provide training, but Way for Sky helps you with your visa applications. They help you with your accommodation. They assist you with the backbones and the admin requirements in order to start your training, which is an advantage to any student looking to join. अगेन नमस्कार बेंगलुरु, मेरा नाम है ऋषि चौधरी। मैं ग्राउंड इंस्ट्रक्टर हूं और हमारी एक एकेडमी है, पायलट प्रोफेशन एकेडमी। आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द सेम। आप स्काई में हैं, आप दोनों कोलैबोरेट करके काम यस यस यस। तो अंडर वे फॉर स्काई के अंदर एक्वालाइट फ्लाइंग विंग्स आता है और पायलट प्रोफेशन एकेडमी आता है। पायलट प्रोफेशन एकेडमी आपको ग्राउंड ट्रेनिंग देता है और एक्वालाइट फ्लाइंग विंग्स आपको पायलट ट्रेनिंग देता है, फ्लाइंग ट्रेनिंग देता है। इसके अलावा वे फॉर स्काई आपको वीजा प्रोसेस कराता है, मेडिकल और जो भी अदर रिक्वायरमेंट्स होती है, प्लस आपको जो जॉब के लिए असिस्टेंस चाहिए वो भी प्रोवाइड करता है। और जो भी ऑफर्स है वो सब वे फॉर स्काई के अंतर्गत आते हैं। तो व्हेन यू डायरेक्टली टॉक टू मी, अगर आप मेरे से डायरेक्टली बात करते हो तो मेरे पास वो ऑफर्स नहीं रहते, ना ही मैम के पास ऑफर रहते हैं। ये ऑफर सिर्फ वे फॉर स्काई के अंडर आते हैं। तो 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, आई थिंक ये ऐड करना है। आपकी जेन्युइनिटी देखना चाह रहे हैं कि हाँ। आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। हम तो रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं अभी तो। अच्छा। हाँ हाँ। तो वे फॉर स्काई हमारे साथ अभी रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट लाइक हमारा वे फॉर स्काई के साथ रिश्ता जो है वो अभी 3 महीना हो चुका है और ये बहुत स्ट्रांग चल रहा है। हमें जो स्टूडेंट्स मिले हैं उनके ग्राउंड सब्जेक्ट्स हम तैयारी कर रहे हैं एंड दे आर एबल टू क्लियर द सब्जेक्ट्स। अब वो जाएंगे फ्लाइंग के लिए और हमारा ये जो रिश्ता है ये कंटिन्यूस रहेगा फॉर एवर, अभी तो जब तक ये प्रोसेस ऑफ सेंडिंग स्टूडेंट्स टू अफ्रीका या एनीवेयर एल्स रहेगा। Pilot Anil Sharma. I am from Delhi. My main job is to teach all students about career in aviation. I go to lot of schools in Delhi. I am highly trained. I am an MBA. I have done 2 courses from Nagpur, firefighting and rescue course. I have flown all aircraft, single engine, twin engine, including Jumbo Jet 747-300 Combi. My main job is give the motivational speech to students how to be a pilot. All my predecessors, they have told about institute, what they have to do. My main job is tell students what is the advantage of becoming a pilot, what pilot should do, what quality he should observe, what are the safety requirements in flying, why accident takes place in the aircraft or air. Lot of question has been asked these days. Lot of accidents are taking place. Accident take place in the air, on the road and in the water also. But whenever accident takes place, there are 3 reasons for the accident. One can be a human error, second can be a mechanical failure, and third is environmental problem which nobody knows. So you say aircraft accident takes place too much? No. You have to see what is the reason. Sometimes can be human failure, sometimes can be mechanical failure, and sometimes can be environmental problem. So when all these 3 factors combine, when you see, then come to a conclusion. Mere saying that lot of accidents take place in the air, it does not suffice the purpose. Today's date, aircrafts are safer in flying. Lot of automation has been done.
and aircraft has a system, 2 to 3 various systems to revive if anything goes wrong. And if a human makes a mistake, there are 3 systems to revive by the computers. These days, AI is working in aircraft too much, so there is no chance of human error or mechanical failure. These days, machines are very safe, and we should rely on this machine. Good evening. My name is Jody Clark. I'm a flight instructor at Accolade Flying Wings, based in Johannesburg, South Africa. Mr. Clark, now, as an individual, what qualities should I have in order to become a pilot? Where's Mr. Sharma? Mr. Sharma would be the best person to answer that. But let me say, discipline, punctuality, attentiveness. What else? Just this hard work, dedication, great decision making. Yeah. What are the negatives? What are the? Negatives. One negative point that you know as an experienced person In terms of what? What? in terms of becoming a pilot. I'm going to speak from a flight instructor point of view, Yeah. right? Training people that are hard of hearing is quite difficult. That don't listen. Yeah. Thanks. Okay. No. मैं कैप्टन गुरु चौधरी, आई एम CPL होल्डर. मैंने AFIR भी किया है, जो कि होता है असिस्टेंट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग. उसके बाद मैंने किया है टाइप रेटिंग ऑन एयरबस A320, जो कि बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट है. हाँ. तो आज का जो सेमिनार था वो फ्लाइट स्कूल के बारे में है, जो कि एक्कोलेड फ्लाइंग स्कूल है ना साउथ अफ्रीका में. और इसके लिए साथ में कोलैबोरेशन है हमारा भी पायलट प्रिपरेशन एकेडमी, जो कि ग्राउंड क्लासेस लेता है. और यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है मेन, वो है वे फॉर स्काई. तो वे फॉर स्काई ऑर्गेनाइज किया है सारा. उन्होंने हमको एज अ हम ग्राउंड इंस्ट्रक्टर रहेंगे पायलट प्रिपरेशन एकेडमी, जिसमें ऋषि सर भी साथ में है. और फ्लाइंग ट्रेनिंग मैडम देखते हैं एक्कोलेड फ्लाइंग विंग्स में. तो इस तरीके से कोलैबोरेशन है हमारा. और मेन एम है कि सारे बच्चों को अफोर्डेबल रेट में फ्लाइंग की ट्रेनिंग दी जाए और बेहतरीन से बेहतरीन टेक्निक से उनको सिखाया जाए फ्लाइंग. ओके. सो तो ये जो फ्लाइट स्कूल है साउथ अफ्रीका में बेस्ड है और जर्मिस्टन में, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी फ्लाइट ट्रेनिंग होती है. मैंने पर्सनली भी कुछ स्टूडेंट से बात की है वहाँ के. उन्होंने काफी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट बताया है, जो कि काफी बेहतरीन लगा मुझे कि जब एक स्टूडेंट से रिव्यू आता है तो फिर बहुत पॉजिटिव फील होता है, राइट. तो वो है. प्लस हम लोग उनको इंडिया की जो ग्राउंड स्कूल है वो हम सिखाएंगे उनको. वो वहाँ पर हमको क्या होता है, जब एक बच्चे को बाहर जाना होता है फ्लाइंग के लिए, तो इंडिया के 3 सब्जेक्ट क्लियर करने होते हैं. वो 3 सब्जेक्ट होते हैं नेविगेशन, एयर रेगुलेशन और मेट्रोलॉजी. तो ये 3 सब्जेक्ट को जो क्लियर कराने का टास्क है वो हमारा है एज अ ग्राउंड स्कूल. ठीक है. तो एक ग्राउंड स्कूल हो गया जो कि हमारा है पायलट प्रिपरेशन एकेडमी. एक हो गया फ्लाइट स्कूल. फ्लाइट स्कूल मतलब जहां पर फ्लाइट ट्रेनिंग होती है, वो है एक्कोलेड. और वे फॉर स्काई इज द ऑर्गेनाइजर, कि वो कैसे बच्चे जाएंगे. ठीक है. उनका वीजा प्रोसेस कैसे होगा, उनको फंड्स का कैसे वो लोग कर सकते हैं जमा. ठीक है. लोन फैसिलिटीज कुछ हो सकती है क्या, तो वो कैसे हो सकती है. प्लस उनको कंप्लीट बैकअप देना स्टूडेंट्स को. और वे फॉर स्काई ने जो सबसे बढ़िया काम किया है वो ये किया है कि उनकी जो टीम है पूरी, वो हर फील्ड में स्टूडेंट को हेल्प करती है. जैसे एक हो गया जो सिर्फ एक टीम है जो लोन के बारे में बताएगी स्टूडेंट को. अलग जो टीम हो गई वो गाइडेंस देगी कि एक स्टूडेंट को कैसे कैसे करना है साउथ अफ्रीका का प्रोसेस. तीसरा जो टीम है वो स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को कन्विंस करेंगी कि कैसे साउथ अफ्रीका एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए, जो कि बहुत अफोर्डेबल भी होगा. ठीक है. सो साउथ अफ्रीका की जब बात आती है ना फ्लाइंग के लिए, तो वो इसलिए आती है कि अफोर्डेबल फीस में आपको फ्लाइंग होना है. ठीक है.
फ्लाइंग तो सब जगह हो जाएगी, बट एफोर्डेबल फीस में जिसके लाइसेंस की क्वालिटी अच्छी है। साउथ अफ्रीका का लाइसेंस पूरे विश्व में जाना माना है, ठीक है, हर कोई हर कंट्री उसको मानती है, तो इसलिए भी वो ट्रेनिंग बहुत बढ़िया हो जाती है। प्लस जो इंस्ट्रक्टर्स हैं बहुत ही क्वालिफाइड है, ये मैंने किनसे सुना हुआ है, फीडबैक में स्टूडेंट से सुना हुआ है, तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है जब आप एक स्टूडेंट से सुनते हो, है ना। जो स्टूडेंट्स गए हैं, इंडियन स्टूडेंट्स, अगर आप उनसे ही फ्लाइट स्कूल की तारीफ सुनते हो तो एक बहुत एड ऑन आता है, एक बहुत अच्छा फील होता है। तो यही फीलिंग के साथ हम लोग भी जुड़े हैं इसी वे फॉर स्काई के साथ, और हम लोग यही चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चे इंडिया से बाहर जा पाए, एक अफोर्डेबल रेट में जा पाए, बेहतरीन ट्रेनिंग मिले उन्हें, है ना, और उनके जो लाइसेंस का जो प्रोसेस है वो इजी हो जाए। इसीलिए ही ये टीम काम कर रही है, आगे भी काम करती रहेगी, और इसी तरीके से हम सबको हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, एक और पॉइंट मैं यहाँ पर कवर करना चाहूंगा, एक स्टूडेंट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छा पायलट बनने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली क्वालिटी है हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आप जो देख रहे हो वो हैंड में आपको उड़ाना है, जैसे गाड़ी है, राइट, गाड़ी भी चलाते हैं तो आई कोऑर्डिनेशन और हैंड कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपके बॉडी का कोऑर्डिनेशन आपके दिमाग के साथ कितना तेज है, फास्ट है, वो जितना फास्ट होगा आप उतने ही अच्छे रिफ्लेक्स ला पाओगे, जितने अच्छे रिफ्लेक्स होंगे आप उतने ही अच्छे पायलट बन पाओगे, राइट। फिर इसमें आता है छोटे मोटे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी, अगर आपके कैलकुलेशंस अच्छे हैं तो आप फ्यूल कैलकुलेट कर पाओगे, आप टाइम कैलकुलेट कर पाओगे, आप स्पीड कैलकुलेट कर पाओगे, छोटे मोटे, बहुत ज्यादा मैथ्स इसमें नहीं आता है, बहुत बेसिक लेवल का मैथ्स होता है, बट ये मैथ्स जरूरी है ना। तो मैथ्स अगर आपका अच्छा है तो भी आप अच्छा फास्ट फ्लाइंग कर पाओगे। प्लस पेशेंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैंने देखा है कि पेशेंस थोड़ा सा कम होता है और वो इसलिए ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। पेशेंस का क्या मतलब है कि अब आप जैसे लैंडिंग के लिए आ रहे हो, राइट, अब लैंडिंग के लिए आपको डिसीजन लेना है एक टाइम पर आने के बाद कि मैं लैंडिंग को कंटिन्यू रखूं या फिर मैं वापस से एक और राउंड मार के फिर से आऊं लैंडिंग करने के लिए। तो स्टूडेंट्स का कई बार माइंडसेट होता है नहीं मेरे को लैंडिंग करनी है, जो कि गलत है। आप आओ, आपके पैरामीटर्स चेक करो, अगर सारे पैरामीटर्स सही है तो ही आप लैंडिंग करो, नहीं तो फुल पावर दो, वापस से एक सर्किट लेके आ जाओ, फिर लैंडिंग कर लो। तो पेशेंस, लैंडिंग को जब टचडाउन होता है तो जल्दी नहीं खींचना है, बहुत आराम से आपको आपके दिमाग और हाथों पे कंट्रोल रखते हुए उसको एयरक्राफ्ट को उतारना है, और वही एक्चुअली टेक्निक है। और ये टेक्निक विद टाइम रिफाइन होती चली जाती है, इसमें और एडवांसमेंट होता है। तो शुरू में बच्चा गलती करता है, बट इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनको सिखाते हैं प्रॉपर, और इसी तरीके से सारी ट्रेनिंग दी जाती है। मेरा अभी करंटली है 245 आवर्स का, जिसमें मैंने इंस्ट्रक्टर रेटिंग भी किया हुआ है और मैंने एयरबस का भी रेटिंग लिया हुआ है, जो बड़ा एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है। तो इसमें एक टाइप रेटिंग होता है, तो मैंने टाइप रेटिंग किया हुआ है ऑन एयरबस A320। मैंने तो इंडिया से ली थी ट्रेनिंग, बट मुझे बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ी, और जब मैं वे फॉर स्काई के साथ जुड़ा हूं तो मैंने देखा कि मेरे को जो कॉस्ट लगा है इंडिया में उसका लगभग आधी कीमत में इन्होंने वो कॉस्टिंग करा के दी है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज दिखता है मुझे, और इसीलिए भी हम ये ऐसे जेन्युइन फ्लाइट स्कूल्स को और इनको प्रमोट करना चाहते हैं। नहीं, आपको गवर्नमेंट का जो लोन फैसिलिटीज वगैरह है वो पायलट ट्रेनिंग के लिए ज्यादातर नहीं मिलती है। कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं वो देती हैं, बट वो बहुत ही ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन लगा देती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बेसिकली ये आपको खुद के से करना होता है, और ज्यादातर आपको लोन भी लेना है तो मोस्ट केसेस में आपको कोलैटरल पे लोन मिलता है, आपको डायरेक्टली लोन नहीं मिलता, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव स्टडी है। आप जो पढ़ने जा रहे हो एक्सपेंसिव कोर्स है, आपको कोलैटरल रख सकते हो, उसके बेसिस पे लोन मिलता है मोस्ट ऑफ द केसेस।